Good morning, my bacha party. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, today we are going to start chapter 9, that is India social life. In our previous video, I have already given about the information about India social life. That what we are going to learn in this chapter. So, today we are going to start this chapter, right? So, India is a vast country in the continent of Asia. It is a country of believing great diversity. Now, here on earth, does humanity present itself in such a dizzying, creative burst of culture and religion, races and tongues? Home to the Asian Indus Valley civilization and a region of historic trade, roots, and vast empires. The Indian subcontinent has been identified with its commercial and cultural wealth. For much of its long history, high mountain ranges, vast sea, large river irrigated lands, countless rivers and streams, dark forests, sandy deserts, all these have adorned India with an exceptional diversity. Among the people, there are numerous races, religions, language, dialects. In course of time, they move themselves into the in intricate fabrics of India. However, the real strength of Indian culture lies in its basic unity, vigor, and ability to contain the amazing diversity with itself. In this country, there are people who belong to opposite schools of thought. Yet it is this diversity that binds the one Indian another and the concept of one basic culture and nation as continues thrive even today. So students, as I told you in our previous video also कि इस चैप्टर में हम डिफरेंट जो हमारा एक इंडिया है जिसमें भिन्न भिन्न तरह की क्या है डाइवर्सिटीज है लैंग्वेजेस की देखो ऑफिस की देखो लोगों की देखो खाने की देखो पीने की देखो रहना देखो किस तरह से वो रहते हैं राइट गुजराती टोटली अपोजिट्स होते हैं पंजाबी के राइट पंजाबी अपनी तरह से रहते हैं गुजराती का रहना कहना अपनी तरह से होता है सिमिलरली साउथ और ईस्ट का ले लो तो उनका रहना कहना भी क्या होगा टोटली अलग होगा तो वो कैसे वो खाते हैं पीते हैं क्या उनकी लैंग्वेजेस होती है राइट वो किस तरह से लोग क्या कहते हैं कि भाई रहते हैं एंड लैंग्वेजेस में डायलेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंस बोलते हैं राइट उनका खाने का पूरा कल्चर अलग होता है तो इस तरह से हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इंडिया के चारों डायरेक्शन के बारे में लर्न करेंगे कि कौन से डायरेक्शन में किस तरह से लोग रहते हैं उनका कैसा रहना कहना है उनकी ड्रेस ऑफ वियरिंग कैसी है उनके यहाँ कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं वो सब करेंगे राइट सो फर्स्ट इज सोशल लाइफ ऑफ वेस्टर्न इंडिया अब वेस्टर्न इंडिया में सोशल लाइफ इंडिया की कैसे है राइट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड about the social life of Gujarat and since Gujarat lies to the west of India हमने गुजरात की सोशल लाइफ के बारे में तो पहले ही फर्स्ट सेम में चैप्टर लर्न किया ही था कि लोग कैसे रहते हैं गुजरात में कौन से डिफरेंट सिटीज़ में क्या क्या बिलोंगिंग करते हैं राइट नाउ आज फिर से थोड़ा सा गुजरात के बारे में लर्न करेंगे क्यों क्योंकि वो आता है वेस्ट के साइड पे Despite having an extensive coastline, the cuisines of Gujarat is primarily vegetarian cuisine. The staple diet of the people includes cereal, pulses, vegetable, clarified butter, ghee, milk, buttermilk, etc. Kathiawadi meals and dal bati are very popular due to the vast coastline. People living in the western India consumes egg, fish and etc. Men wear a dhoti, Jodhpuri trousers, loose pajama, then after waist to the high and high coat things to make an ankle and short pleated frock shirt or kurta. They also carry a stole on their shoulders. Women wear a sari. Rajasthan men wear a dhoti and short pleated frock shirt. Women wear a colorful pleated ankle length skirts that is ghagra and long waist length is blouses. In Maharashtra, women wear a 9 yard divided sari that is naumwari and kachoto.
Today, in developing society, men wear trousers and shirt, while women wear a salwar kameez or trouser. People of rural area and tribal dresses according to the region they live in. So, अगर वेस्ट की बात करें तो उसमें राजस्थान आया, ठीक है ना, महाराष्ट्र आया, देन आफ्टर गुजरात आया. तो अगर गुजरात की बात करें तो आपको पता ही होगा कि गुजरात में क्या खाने पीने का होता है. पहले तो गुजरात में आपको मिलेगी गुजराती थाली, राइट. पूरी की पूरी गुजराती थाली में आपको स्वीट मिल जाएगा, लस्सी मिल जाएगी, घी वाली रोटियां मिलेगी, पूरी मिलेगी, शाक मिलेगा, राइट. हमारे क्या होते हैं कि भैया ना सेव टमाटा के शाक होते हैं, राइट. देन आफ्टर दाल चावल आपको मिल जाएंगे, खिचड़ी कड़ी मिल जाएगा, बाजू में उसका थोड़ा सा सलाद भी होगा. देन आफ्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथाणे जो होते हैं, राइट, अथाणु जिसको हम बोलते हैं, पिकल्स दैट्स कॉल्ड, वो आपको मिल जाएंगे. और लास्ट में आपको गुलाब जामुन डेजर्ट के लिए भी मिलता है, राइट. तो ये क्या है, गुजराती थाली है. सिमिलरली अगर राजस्थान में जाओ तो आपको दाल बाटी जो है वो खाने को मिलेगी, फाइन, है ना. और महाराष्ट्र की बात करो तो महाराष्ट्र में भी डिफरेंट फूड्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का वड़ा पाव जो है वो बहुत फेमस है, वो भी आपको खाने मिलेगा. रोड साइड स्ट्रीट फूड्स जो है वो बहुत सारे फेमस हैं, वो भी आपको खाने मिलेंगे, राइट. तो ये जो भिन्न भिन्न स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हैं, उनका खाना पीना रहना कहना बहुत ही अलग होता है, राइट. इन स्पाइट ऑफ दैट वी ऑल आर इंजॉइंग ऑल दिस थिंग्स. हम वड़ा पाव भी खाते हैं दिल से, हम दाल बाटी भी दिल से खाते हैं, तो हम हमारी गुजराती थाली भी दिल से खाते ही हैं, राइट. अगर मैं बात करूं कि अगर खाने पीने की बात हो गई हो तो हम बात करें कपड़ों की, तो कपड़ों में आपको पता ही है, जैसे कि गुजराती लोग होते हैं तो हम साड़ी वियर करते हैं, राइट. ब्लाउज पेटीकोट जो होता है वो पहले वियर करेंगे, नीचे से क्या कहते हैं कि भाई हमारा चनिया जो होता है, राइट, जिसको है ना क्या बोलते हैं, स्कर्ट बोलते हैं यहाँ पे. तो स्कर्ट वेयर करके देन आफ्टर उसके ऊपर हम गुजराती साड़ी वेयर करेंगे. सिमिलरली आपने मेंस को देखा होगा तो धोती जबा, राइट, वो वेयर करते हैं. सिमिलरली अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसी तरह से ड्रेसिंग सिस्टम अलग होती है. वो लोग तो बड़ी सी नथ पहनते हैं, फिर है ना क्या करते हैं कि भाई चुन्नी जो होती है वो सिर पे ओढ़ के लगाते हैं, उनका ब्लाउज होता है, स्कर्ट होती है. तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट रहना कहना होता है वो बिल्कुल अलग होता है हर एक स्टेट का, राइट. अगर आपको याद हो तो हमने राष्ट्रीय एनुअल फंक्शन जो किया था उसमें हमने यही किया था कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया था, उनके ड्रेसेस, उनका कहना, उनके डायलॉग्स भी रिप्रेजेंट्स किए थे, राइट. तो ये क्या है, हमारे वेस्टर्न गुजरात की बात हो रही है. पर आजकल आप देखने जाओ तो थोड़ा वेस्टर्न ज़माना भी आ गया है, राइट. तो आजकल मेन क्या लोग यूज़ करते हैं, हम लोग नॉर्मली क्या पहनते हैं, फॉर एग्जांपल मेन हो तो वो टी शर्ट, राइट, शर्ट और नीचे पैंट या ट्राउज़र वियर करेंगे. सिमिलरली जो लेडीज़ होती है वो सलवार कमीज़ भी आजकल प्रेफर करती है, राइट. छोटे लैंगीज कुर्ती भी प्रेफर करते हैं, राइट. तो ये भी है. बट अगर हम बात करें कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट रीजन ले लो, ठीक है, सौराष्ट्र का डिफरेंट रीजन ले लो, वहाँ के एक छोटे से गांव का रीजन ले लो, तो जिस तरह से उनको अपना इन्वायरमेंट मिलेगा उस तरह से वो क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे और रहेंगे, है ना. अगर उनका इन्वायरमेंट पूरा धोती का और चनिया चोली का है तो वो वही वियर करेंगे, है ना. बट वो क्या होता है, जिस तरह से वो जिस एरिया में रहते हो, जिस तरह से वो जिस एरिया से बिलोंग करते हो, रीजन से बिलोंग करते हो, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, वियर करते हैं अपने कपड़े. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो, राइट. आपको यहाँ पे आउटफिट ऑफ महाराष्ट्र का मिलेगा. आपको पता ही है कि महाराष्ट्रन साड़ी कैसे पहनी जाती है, नथरी डाली जाती है ना. यहाँ पे आपको आउटफिट ऑफ राजस्थान का भी मिल जाएगा, आप राजस्थान का आउटफिट देख सकते हो, राइट. ये आप देख सकते हो. अब रेसिडेंस जो एरिया होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे, राइट. सो द हाउसेस आर मेड ऑफ bricks, stones and cement. Tribal of the forest and hilly areas live in huts made of bamboo and teak branches scattered over the area of they live. In the village of Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh, the houses are made of stone, stones, brick and cement. अभी देखो, अगर हमने बात की कपड़ों की तो हमने देखे कि डिफरेंट डिफरेंट कपड़े
अलग अलग आउटफिट होते हैं। बट अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो आपको पता ही है कि हम गरबे में क्या पहनते हैं, वो हमारा क्या है, फेमस है ना, चनिया चोली, राइट हियर। और नॉर्मली भी आपको आउटफिट हो तो हमारी गुजराती साड़ी होती है, एंड नॉर्मली धोती जबा हमारा क्या है, वियरिंग है। अब हाउसेस जो मेड किए हुए होते हैं वो आपको पता ही है, स्टेन स्टोन्स ब्रिक सीमेंट से ही किए हुए थे। अब जो ट्राइबल एरियाज फॉरेस्ट हिली साइड रहते हो तो वो क्या यूज़ करते हैं, तो वो मेड ऑफ बैम्बू एंड टिक ब्रांचेस, बैम्बू से छोटे छोटे हर्ट्स वगैरह पता है बने हुए होते हैं, उससे उनके घर बने हुए थे। एंड वो अपने एरिया के हिसाब से, जिस हिसाब से वो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, उस हिसाब से वो क्या कहते हैं, अपनी ड्रेसिंग वियरिंग करते हैं, राइट। आगे यहाँ पे आप रेसिडेंस देख सकते हो फॉरेस्ट एरिया के, एकदम अलग से होते हैं हिली एरिया पे। ये तो अभी भी आपको एक अच्छी तरह से पिक्चर में दिखा रहा है कि भाई घर कैसा है, बट काफ़ी जगह पे तो ऐसे होते हैं कि छोटे से बिल्कुल स्लम टाइप हॉट बने हुए होते हैं, और है ना उसमें भी लोग रहते हैं। लेकिन सब जो होते हैं फॉरेस्ट एरिया वाले, ऑल वेर नॉट इन, दे हैव देयर गुड अर्न मनी, राइट। काफ़ी को नॉर्मल भी होते हैं तो वैसे भी रहते हैं। प्लस में अगर हिली एरिया के साइड अगर बात की जाए, लाइक महाराष्ट्र आप जाओगे तो वहाँ पे थोड़े सा हिली एरिया आपको मिलेगा, एक पर्टिकुलर रीजन के साइड मिलता है, पूरा आपको ऐसे हिली एरिया नहीं मिलेगा। अगर हम ऊपर जाएं कहीं घूमने तो वहाँ पे एज अ विजिटिंग टूरिस्ट आप देखोगे या लोग रहते हो तो आपको ऐसे ना घर लकड़े के बैम्बू स्टिक्स के बने हुए मिलेंगे जो वहाँ पे लोग रहते हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर ऑल्सो, रेसिडेंस इन फॉरेस्ट एरिया, फाइन। एंड मॉडर्न रेसिडेंस, आजकल का मॉडर्न रेसिडेंस देखो, आपको पता ही है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के किस तरह से हमारे घर वगैरह बनते हैं, एंड हाउ वी आर लिविंग ऑन दिस थिंग्स। People speak Gujarati, Marathi, Konkai, Rajasthani, and Hindi. People use local dialects in forest and tribal areas. People in India enjoy festivals. Different festivals are celebrated here. The Ras and the Garba of Gujarat are very popular all over the world. The folk songs and dances of Rajasthan are different, especially the Ghumar. The Lavani of Maharashtra is also from the fairs of Tanetar, Bhavnath, Shamal Ji, Dang Darbar are well known as festivals like Diwali, Ganesh Chaturthi, Eid, Christmas, etc. celebrated together by one and all. अगर मैं बात करूं कि भाई फेस्टिवल्स की बात की जाए तो आपको पता ही है फेस्टिवल्स जो हैं, तो गुजरात का जो फेमस है रास गरबा, राइट। रास गरबा आपने देखा होगा गुजरात का फेमस है, दैट इज अ वर्ल्ड पॉपुलर, राइट। वो हर एक जगह पे फेमस है। दुबई में भी सेलिब्रेट किया जाता है तो अमेरिका में भी सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। इवन दो माई फ्रेंड इज शी इज इन लिविंग इन लंडन, सो दे आर ऑल्सो दे आर सेलिब्रेटिंग द नवरात्रि। सो रास गरबा जो है गुजरात का वो वर्ल्ड पॉपुलर है। तो अगर हम बात करें कि भाई है ना राजस्थान महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपको पता ही है गणेश चतुर्थी जो है वो जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। सिमिलरली एमपी में भी सेलिब्रेट किए जाते हैं काफ़ी फेस्टिवल्स। तो अगर मैं बात करूं उनके डांस की, जैसे गुजरात का रास गरबा है तो राजस्थान का घूमर है, राइट। आपने घूमर डांस भी काफ़ी देखा होगा, इवन दो काफ़ी मूवीज आई है उसमें आपने घूमर डांस जो है वो फेमस हुए भी हैं, वो देखे होंगे। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ लावनी की, राइट, तो महाराष्ट्र में लावनी डांस जो है वो बहुत ही फेमस होता है। एकदम मराठी टाइप की वो क्या पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, अपने में बड़ी कान में नथ लगाएंगे, पीछे बालों में गजरा लगा के वो लोग लावनी डांस भी करते हैं, राइट। तो जैसे गुजरात का फेमस गरबा है उसी तरह से महाराष्ट्र का फेमस लावनी डांस है, राइट। एंड राजस्थान का फेमस घूमर डांस है, फाइन। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंस की हर एक स्टेट की क्वालिटी है वो जो है वो फेमस है। जो खाने पीने की बात करो या फिर अगर आप बात करो कि डांस की या फिर आप बात करो फेस्टिवल्स की। सिमिलरली यहाँ पे जो फेयर्स लगे जाते हैं, लाइक जो मेले लगे जाते हैं, तो आपने देखे ही होंगे वेल नोन फेमस टानेट और जो है फेयर, राइट, जहाँ पे शिव जी का ही बिलोंगिंग टू द तरनेतर फेयर जो थान में होता है, वो भी
शिव जी के ही बिलोंगिंग ये फेयर होता है। सिमिलरली भवनाथ की बात करें तो आपको पता ही है शिवरात्रि पे भवनाथ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल लगता है, राइट। फेस्टिवल सॉरी, और वो मेला लगता है, शिव जी का ही मेला लगता है। शिवरात्रि का स्पेशल मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है भवनाथ पे। उसी तरह श्यामल जी, दंग दरबार, ये जो फेयर्स जो है, ये सारे जो मेले हैं वो वेल नोन मेले हैं जो अपने अपने स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं दिवाली, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, तो ये सारे जो फेस्टिवल है वो आजकल हर एक फेस्टिवल में हर एक स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी है, तो जितना गणेश चतुर्थी फेमस जो है महाराष्ट्र में है, तो उतना ही फेमस आजकल गुजरात में भी है। लोग घर घर पे गणेश चतुर्थी है जो गणपति जी की स्थापना करते हैं एंड फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, राइट। आपने देखा ही होगा कि 11 दिन रखा जाता है गणपति जी को, राइट। 11 दिन गणपति जी को रखा जाता है। कोई 5वें दिन पे विसर्जन करता है, कोई तीसरे दिन पे विसर्जन करता है, कोई 7वें दिन पे विसर्जन करता है गणपति जी का। उसी तरह अगर मैं बात करूँ दिवाली की, तो दिवाली जो फेस्टिवल वो हर एक स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर वो महाराष्ट्र लो, राजस्थान लो, गुजरात लो, तो दिवाली जो है वो हर एक जगह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ईद, तो ईद भी जिस स्टेट में ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर स्टेट में ही ईद सेलिब्रेट की जाती है, राइट। ईद भी सेलिब्रेट उसी तरह से की जाती है जिस तरह से अलग अलग स्टेट में जो लोग उस रिलीजन्स के रहते हो। क्रिसमस भी इसी तरह से जो रिलीजन से लोग बिलोंगिंग करते हैं। इवन दो हम भी चर्च वगैरह में जाते हैं एंड देख के आते हैं सब कुछ, एंड क्या कहते हैं कि हाउ दे आर डूइंग, हाउ दे आर enjoying their festival, we also are seeing there also. Fine. So this is all about what that is a Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, right? ये जो है ये हम सब लोग एक इकट्ठे साथ में सेलिब्रेट भी करते हैं, राइट। हमने उनका डांस देखा, हमने उनका खाना पीना देखा, हमने उनका रेसिडेंस एरियाज के बारे में पढ़ाई की, देन अगेन हमने उनके फेस्टिवल्स के बारे में भी पढ़ाई की। What about that was the western side? You can see the picture of folk music of Rajasthan. अपने राजस्थानी सॉन्ग सुने ही होंगे। इवन दो हमारा जो है वो गरबा जो वर्ल्ड फेमस है, राइट। 9 दिन नवरात्रि के हम सब कुछ भूल जाते हैं पर गरबे के लिए हम रेडी हो जाते हैं, चाहे कितने भी थके हुए हो, राइट। ये गरबे के दिन हम मिस नहीं करेंगे, नो डाउट। दिस टाइम कोरोना के लिए इतना कोई किसी ने सेलिब्रेट ही नहीं किया, कोई कहीं गया ही नहीं। छोटे छोटे फंक्शंस रखे होंगे अपनी अपनी सोसाइटी में, राइट। पर वहाँ पे भी गैदरिंग करना अलाउड इतना था नहीं, अपने अपने घर के लोग ही अलाउड थे। तो और फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट, नेक्स्ट ईयर जैसे ही जल्दी से वैक्सीन का ये इम्प्रूवमेंट आ जाए, स्टार्ट हो जाए, हो तो गई है बट अभी भी हम लोगों तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमने सुने हैं। लेट्स सी क्या होता है आगे। फाइन। तो नेक्स्ट ईयर हम सब कुछ अच्छी तरह से सेलिब्रेट भी कर पाए, होप फॉर द बेस्ट, राइट। तो यू कैन सी द म्यूजिक ऑफ राजस्थान, आपने राजस्थान म्यूजिक्स भी देखे ही होंगे। इवन दो इंडियन आइडल जो देखते होंगे, जो उसको सिंगिंग बहुत पसंद होगा, उसमें वो लोग देखते होंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं और अपने स्टेट के सॉन्ग्स के साथ दूसरे सॉन्ग्स भी गाते हैं। एंड गरबा गुजरात का तो आपको वर्ल्ड फेमस पता ही है, किस तरह से लोग पागल है गरबा के पीछे, राइट। So this is all about the things which we have learned about the western side. वेस्ट साइड के स्टेट्स के हमने सारे लर्न किए, राइट। उनके डायलैक्ट्स कैसे होते हैं, उनके लैंग्वेजेस, राइट। देन आफ्टर क्या कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है तो गुजरात में गुजराती बोली जाती है। उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट डायलैक्ट्स होते हैं, राइट। चरोतरी, सुरती, सौराष्ट्र, ये डिफरेंट डिफरेंट डायलैक्ट्स जो होते हैं वो भी हम बोलते रहते हैं। फिर उनके रहने का, लाइक फॉरेस्ट एरिया में लोग किस चीज़ों से बने हुए घर में रहते हैं। देन आफ्टर मॉडर्न जो डिफरेंट टाइप्स हैं उस हिसाब से लोग कैसे रहते हैं, व्हाट द थिंग्स वेर यूज टू बिल्ड देयर हाउसेस, राइट, वो भी हमने पढ़ा। फाइन। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा वेस्टर्न साइड का, राइट। वेस्टर्न साइड हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ, मतलब वेस्ट से अभी सीधा ऊपर चले जाओ नॉर्थ। हम इस चैप्टर में चारों धाम जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ घूम के आ जाएंगे, है ना। बैठे बैठे मस्त आपको सब जगह का मैं घुमा के आऊंगी।
तो अब हम करेंगे, ऊपर की साइड चले जाएंगे, नॉर्थ की साइड, और नॉर्थ के बारे में लर्न करेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में समझेंगे। फाइन। ना सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की सोशल लाइफ कैसी है? द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया इज wheat based. They also consume pulses, vegetables, fruits, clarified butter, milk and buttermilk. Lassi, sweetened buttermilk of Punjab is delight to the taste of birds. Punjab is known as the land of five rivers. The people are sturdy and hardworking. Men and boys wear a loose pants or slacks with a collared shirt or t-shirt. Some males also wear the kurta, pajama, jacket. Especially the Punjabi farmer, many Punjabis, mainly Sikh, wear the turban on the heads. The women wear a salwar kameez with the bright colored dupattas. Jammu and Kashmir is famous for the natural beauty since the time immemorials, and has been aptly described the heaven of earth. Consumes Jammu and Kashmir were well known as the embroidery intricate designs. The form of clothing is designed to counter the cold climate of the region. The traditional pattern, long tunics stretching up to their feet with full long sleeves. It is the most popular form of dress among the both men and women. They also wear a Mughal type of turbans, headgear, colored scarf, worn by the women on their heads. Variation is seen on their outfit due to the modernizations. Right? अगर हम बात करें नॉर्थ के साइड, जैसे कि हम नॉर्थ के साइड पहुंच ही गए हैं, तो पंजाब की बात की जाए। राइट? अब पंजाब की बात की जाए तो आपने देखा ही होगा कि पंजाबी ऑल द मेन्स एंड वुमेन्स आज ऐसे आपको ना ऐसे अट्टे गट्टे मिलेंगे। राइट? बहुत ही ऐसे तंदुरुस्त वगैरह मिलेंगे एंड फेमस फॉर दर लस्सी। उनकी लस्सी कितनी बड़ी होती है। इवन दो आप पंजाब साइड जाओगे ना तो आपको लस्सी के ग्लास इतने बड़े मिलेंगे ना कि हमारी मतलब कैपेसिटी ही नहीं होती कि हम इतना पी सकें। राइट? हमारे छोटे छोटे ग्लास तो उनके सामने कुछ नहीं कहलाए, और इतने बड़े बड़े ग्लास होते हैं, उसमें वो लस्सी पीते हैं, एंड वो भी इतने पराठे खा के। what is the our capacity to eat the paratha 1 or 2, right? Not more than that. बट वो लोग तो इतने बड़े बड़े पराठे विद बटर घी लगे हुए, वो 3 4 5 6 तो आराम से खा जाते हैं, और उसके साथ इतना बड़ा लस्सी का ग्लास, फिर ही उनका पेट भरता है। राइट? तो रियल पंजाबी वही होते हैं। राइट? देन आफ्टर आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट पंजाब में पंजाबी ही आपको मिलेंगे, और आपको पता ही है कि उनका वियरिंग स्टाइल कैसे होता है। उनके सिर पे पहले तो पगड़ी होती ही है। राइट? और आजकल तो पहले तो जैसे देखने जाओ तो पंजामा एंड कुर्ता ही उनकी जो मेन ड्रेसिंग होती है। बट एज टू टॉक अबाउट द मॉडर्नाइजेशन, अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो वो लोग शर्ट पैंट, ठीक है, जैकेट वगैरह आजकल तो हर को ही पहनता है। एंड पंजाबी ड्रेसेस आपको पता हो, एकदम पंजाबी टाइप की सलवार होगी एंड उसमें कुर्ता लगा हुआ होगा एंड पूरा दुपट्टा होगा, वो होगा। राइट? उनके जो बाल होते हैं ना, ऑलमोस्ट आपको लंबे और घने बड़े मिलेंगे। राइट? आपने ऑलमोस्ट पंजाबी लोगों को देखें, उनके बाल बहुत घने और लंबे बहुत बड़े मिलेंगे। राइट? तो पंजाबीज़ की बात की जाए तो राइट, पंजाबीज़ का जो खाना है, उनका पीना है, उनका रहना कहना एकदम एकदम हटके, हटके तो नहीं बोल सकते क्योंकि हर एक स्टेट का अपना अपना अलग से हटके से ही होता है, बट ये उन एकदम तंदुरुस्त आपको मिलेंगे, अलग ही मिलेंगे लोग। बट वहीं अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर जाए तो यू कैन सी जम्मू कश्मीर के लोग। राइट? पहले तो आप कश्मीरी कपल्स देखो, कश्मीरी लेडी देखो। आप अगर नॉर्थ के साइड घूमने गए हो लाइक शिमला, राइट, कुल्लू मनाली जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे आपको हियर देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ कश्मीरी लेडी, आपको दिख रहा है कश्मीरी लेडी का पिक्चर। ऐसे ही आउटफिट्स में आपको लोग काफ़ी आगे पीछे जो मिलेंगे वो बोलेंगे कि आप इसमें हमारे फोटोग्राफ खिंचवाओ। राइट? ये एक मेमोरी होती है। इवन दो व्हेन आई वेंट visit that Shimla, Kullu Malar, even though I have also wear this type of clothes, राइट? ये एक मेमोरीज बन जाती है। तो उनके आउटफिट आपको इस तरह से ही मिलेंगे।
अलग तरीके से। यू कैन सी इन दिस पिक्चर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटफिट्स लगे हुए हैं, राइट। तो आपको इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स ही मिलेंगे। मेनली कश्मीरी जो होते हैं उनकी भी एक सलवार टाइप होती है एंड कुर्ती होती है एंड दुपट्टा होता है जो पीछे लगा हुआ होता है। एंड आपको मेन जो मिलेंगे वो धोती जबे में कोटी में ही मिलेंगे। आधे लोग होते हैं जो कश्मीर साइड वो टर्बन भी वियर करते हैं, बट उनका जो होता है क्या कहते हैं कि आउटफिट, लेडीज़ जो होती है आपको डिफरेंट उनका आउटफिट भी मिलेगा। उनके सिर में भी एक टर्बन लगी होती है और बहुत सारी ज्वेलरी भी लगी हुई होती है हाथों में और गले में। एंड उनका एकदम पहनने का आउटफिट भी अलग होता है। यू कैन सी यह पिक्चर में आपको पता चल जाएगा कि ये आउटफिट है नॉर्थ वाले के। गढ़वाल के कपल भी देखो, राइट, उत्तराखंड के साइड जाओ तो आपको दिखेंगे कि डिफरेंट टाइप उनकी भी लैनी कैनी अलग होती है और उनके वियर, ड्रेसिंग ऑफ वियर देखो बिल्कुल अलग, राइट। सो देखो हम कहाँ पंजाब की बात करें, अब ये पंजाबी अगर हम वेस्टर्न के साथ, राइट, ये नॉर्थ का हम वेस्ट के साथ कंपेयर करें तो कितना डिफरेंट लुक है। हमारे में साड़ी वगैरह आ जाती है, गुजराती साड़ीज़ वगैरह आ जाती है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ वियरिंग, राइट। खाना पीना एकदम अलग, इनके पराठे, जम्मू एंड कश्मीर में आपको नॉनवेज भी बहुत मिल जाएगा क्योंकि हाँ हिल्स साइड रहते हैं तो उनको बहुत ही ठंडी लगती है, राइट। तो ऑलमोस्ट दे विल प्रेफर द नॉन वेज ऑल्सो, राइट। हमारे में इतना नो डाउट दोस्त हु आर eating that non-veg, that's it, but almost the you will got the vegetarian person also, right। तो इनके कंपेयर में हमारा देखो, जस्ट इमेजिन कि व्हाट वाज द वेस्ट एंड व्हाट इज द नॉर्थ, राइट, बिल्कुल अलग, एकदम अलग आपको दिख रहा है, एकदम अलग। उनका खाना पीना अलग, हमारा खाना पीना, हमारी सब्जियां देखो है ना और उनकी सब्जियों को कंपेयर करो, राइट। हमारी लस्सी नॉर्मल बटर मिल्क होता है, छाछ जिसे हम बोलते हैं, राइट। अब उनके कंपेयर करो, एकदम मीठी सी इतनी बड़ी ग्लास में आपको मिलेगी, राइट। उनके पराठे तो डिफरेंट टाइप के आपको पराठे मिलेंगे, गोभी के पराठे, राइट, है ना, फिर आलू के पराठे मिलेंगे, फिर मूली के पराठे आपको मिलेंगे। No doubt this type of parathas we are also eating, but they in their life they are eating in their day to day life, right। it was a famous, even though आचार, पराठों के साथ आचार खाना उनका फेमस होता है, राइट। हम भी आचार लेते हैं बट हमारे आचार और उनके आचार में बहुत सी डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, राइट। नॉर्थ का बोल रहे हैं। इवन दो वन मोर थिंग इज दैट जम्मू एंड कश्मीर को हेवन ऑफ द अर्थ भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में रहना कहना उनका क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा माउंटेनियस रीजन स्नो से भरा हुआ, इट वॉज लाइक अ हेवन। बोलते हैं कि जन्नत मिल गई अगर जो जम्मू एंड कश्मीर होके आया। होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग जो ना गए हैं वो फ्यूचर में जाएं, मैं भी जाऊं और देख के आए कि व्हाट वाज द जम्मू एंड कश्मीर, राइट। एंड जो होके आए होंगे उनको तो मैं बोल रही होंगी तो उनको तो जस्ट इमेज ही हो रहा होगा कि किस तरह से डिफरेंट थिंग्स होते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन नॉर्थ इंडिया हैव अ terraces and made of bricks, wood, stones and mud. The Dal Lake in Jammu and Kashmir is well known for its framed houseboats known as shikaras, right। अभी यहाँ पे आप बोट हाउस देख रहे हो, शिकारा। आप है ना उस साइड जाओगे ना तो आपको बोट हाउसेस बहुत मिलेंगे, राइट, नॉर्थ के साइड। इवन दो जम्मू एंड कश्मीर का तो फेमस ही है शिकारा। वहाँ पे क्या, वहाँ पे एकदम पूरा का पूरा बोट में सब कुछ एज अ हाउस में रह रहे हो ना नॉर्मली, आपको ऐसे ही लगे। टॉयलेट, बाथरूम्स, रूम्स बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किए गए हो, अच्छी तरह से, जैसे कि यू आर इन अ वन होटल, राइट, बट पानी में आपको मिलेगा। देन आफ्टर वो जो है लाइक बोला जाता है कि शिकारा जो है वो तो फेमस है, राइट, दैट वॉज अ फेमस। बट आपको इस तरह से काफ़ी ऐसे हाउसेस वगैरह वहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। सो हिंदी इज़ वाइडली स्पोकन इन नॉर्थ इंडिया। हिंदी जो है नॉर्थ इंडिया में कॉमनली स्पोक की जाती है, बट बिसाइड हिंदी पंजाबी, सिंधी एंड कश्मीरी लैंग्वेज आर ऑल्सो स्पोकन। हिंदी के अलावा पंजाब में पंजाबी, सिंधी एंड कश्मीरी लैंग्वेजेस जो कश्मीर साइड्स बोली जाती है वो भी आपको मिलेगी। लोकल डायलेक्ट सच एज भोजपुरी, बिहारी आर स्पोकन इन यूपी। अगर यूपी की बात करें तो भोजपुरी, बिहारी आपको मिल जाएगी उत्तर प्रदेश के साइड। अगर
हम फेस्टिवल्स एंड फेयर्स की बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो सेलिब्रेट इन अ ग्रेट फेवर। देयर आर मेनी फेमस फेस्टिवल्स इन नॉर्थ इंडिया दैट आर celebrated by the people. The Baisakhi festival of Punjab is celebrated with a great pomp by all. Bhangra, the folk dance of Punjab, is lively and liked by all. The folk songs of Kashmir, devotional songs of Uttar Pradesh, and the Punjab are well known. The nature of the people of North India, however, different. While the Punjabis are lively and cheerful, the Kashmiris are quiet and poised. अगर मैं बात करूं फेस्टिवल्स और फेयर्स की, तो आपको पता ही होगा बैसाखी जो है वो पंजाब में बहुत ही फेमस है, राइट। एंड आपको पता है भांगड़ा, पंजाबियों का डांस क्या होता है, भांगड़ा बल्ले बल्ले, राइट। वो बहुत ही फेमस होता है, राइट। उनका डांस स्टार्ट ही भांगड़ा से होता है। पहले तो भांगड़ा डांस करेंगे, मस्त पैर वैर उछालेंगे, हाथ वाथ उछालेंगे, तभी तो जाके उनको ऐसा लगेगा कि वाह मज़ा आ रहा है। इवन तो आपने बहुत देखा ही होगा कि आजकल टेलीविज़न में ऑलमोस्ट पंजाबी सॉन्ग्स भी बहुत आते हैं, राइट। गुरु रंधावा की बात करो या बादशाह की बात करो, तो ये जो फेमस फेमस सिंगर हैं, राइट, उनके पंजाबी सॉन्ग्स भी बहुत इतने ही फेमस हैं। और अगर वहाँ की बात करें तो पंजाबी है जो पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है तो पहले। एंड उत्तर प्रदेश में भोजपुरी एंड बिहारी लैंग्वेज बोली जाती है। सो बैसाखी जो है वो ग्रेट इंजॉयमेंट से सेलिब्रेट की जाती है पंजाब में। सिमिलरली फोक सॉन्ग्स ऑफ कश्मीरी सॉन्ग्स जो होते हैं यूपी के, और डिवोशनल सॉन्ग्स पंजाबी के एज वेल फेमस हैं। अगर लोगों के नेचर की बात करो तो नॉर्थ इंडिया के नेचर्स लाइक पंजाबी के चेयरफुल्स होते हैं, राइट। पंजाबी आप लोगों ने हंसते खिलते ऐसे मस्त मूडी लोग ही आपने देखेंगे। बट उसके कंपेयर में कश्मीरीज की बात करो तो क्वाइट पॉइज्ड होते हैं। इट मीन्स इतने नहीं होते हैं, काइट पॉइज्ड मतलब ऐसे, मतलब इतने बोल बुलने वाले नहीं लोग, जैसे कि पंजाबी आपने देखे होंगे ना, ऐसे नहीं। Jammu and Kashmir is known as the paradise on the earth, and for its amazing landscape and scenic beauty, the area is among the world's most beautiful places with the beautiful snow-covered mountains, green valleys, and natural lakes. Jammu and Kashmir is bestowed with the breathtaking natural beauty that can memorize anyone. One can see countless gardens with terraced lawns, cascading fountains, paint box, bright flower beds with a rare flower in that state. Handicraft is a traditional industries of the state and seen by crucial importance. Some of items industries are piper make, wood carving, carpet, shawl making, embroidery, etc. Saffron is a maintenance cultivated here. Carpet of Kashmir, embroidery of Kashmir. अब देखो कश्मीरी डांस भी देखो, इनका डांस कैसे होता है। एंड सी अगेन लुक एट द ड्रेसेस देयर, एकदम अलग से। अब वेस्टर्न में आप ऐसे पहन कर निकलो ना तो बोलेंगे कश्मीरी लड़की आई है क्या, राइट। अगर कश्मीर की बात की जाए ना तो कश्मीर की तो बात ही मत पूछो। जस्ट आप इमेज करो, जस्ट मैं आपको बोल रही हूँ, राइट, कश्मीर की बातें, तो भी हमें है ना आंखों के सामने, आंखें खुली हो ना तो भी ऐसे पूरा का पूरा स्नो से बड़ा माउंटेन्स, वैलीज, गार्डन्स, फाउंटेन यही दिखेगा। इसलिए तो कश्मीर को जन्नत बोले जाते हैं, है ना। इसलिए तो कश्मीर को क्या बोला जाता है, जन्नत बोला जाता है, कि धरती का स्वर्ग है, क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। और अगर वहाँ की बात करें कपड़ों की, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कपड़ेस भी मिलेंगे, राइट। जैसे कि आपको कश्मीरी वर्क, कारपेट्स वगैरह जो है, एम्ब्रॉयडरी उसकी डिफरेंट दिखी जाएगी और मिला जाएगा। यू कैन सी द पिक्चर्स। अपने कई जगह जाते हैं ना तो हम बोलते हैं, अगर वहाँ पे अगर विजिट करने जाए ना तो कश्मीरी कपड़े, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल अलग आपको मिलेगी। सिमिलरली काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको मार्केट में जाओ तो आपको दिखाते हैं तो बोलते हैं कि ये कश्मीरी वर्क है, दैट्स वाई इट्स टू एक्सपेंसिव, क्योंकि ये सारे वर्क्स वगैरह है वो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हाथ से किए हुए होते हैं। एंड काफ़ी जो होते हैं एकदम अलग से डिफरेंट स्टाइल में होते हैं, इसलिए हमें बोलते हैं कि भाई ये महंगे वगैरह है, बट इट इज़ प्योर कश्मीरी थिंग्स, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉट, दिस इज़ ऑल अबाउट नॉर्थ साइड। ये हमने पढ़ा नॉर्थ साइड के बारे में। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट नॉर्थ साइड में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ही मोस्ट ऑक्यूपेशन स्टेट है, राइट।
वहाँ पे आपको मोस्टली नॉर्थ साइड, जैसे कि हमने बोला था, डेंसली पॉपुलेटेड नॉर्थ साइड होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लैंड वगैरह होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, एंड वो ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर बेस्ड लोग होते हैं, राइट। एंड इवन दो दे विल कनेक्टेड द कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज टू, फाइन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट नॉर्थ। नॉर्थ का खाना पीना कैसे, नॉर्थ का रहना कहना कैसे, नॉर्थ के लोग कैसे, नॉर्थ के लैंग्वेजेस, नॉर्थ के वियरिंग ड्रेसिंग, ये सब हमने देखा। तो आज हमने वेस्टर्न को पकड़ा एंड नॉर्थ को। नेक्स्ट में हम पकड़ेंगे साउथ और ईस्ट को। हम नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं आपको कहाँ घुमाने लेके जाऊंगी, साउथ में और ईस्ट में, फाइन। तब तक आप नॉर्थ एंड वेस्ट को डीपली पढ़ना एंड समझना। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।